Hello students, today we are discussing about the group action on a pile and negative friction. So when the pile as a group, a number of pile is used for foundation, so what is the effect of the group of the piles on the foundation? In the previous lecture we discussed about the determining the bearing capacity of individual piles which is used in the foundation. Today we discuss about a number of piles acting together in a group. So what is their effect when they work as a group? We are discussed in this video. So group action on pile, the number one is the efficiency of pile group. When a number of piles act together as a group, so what is their efficiency, and when the group of pile is used together, so what is the effect on their efficiency we are discussing. So when several closely spaced piles are together, just like that, this is a assume this is first and second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9. So in this figure you see that the 9 piles which are closely spaced to each other. This is the spacing between the piles. Okay, this is first row, this is second row, and this is third row. And 3 rows of the piles which we are provide, and each row we provide 3 piles. Every row we provide 3 piles. So they are the closely spaced pile. When they are together, it is reasonable to expect that the soil pressure developed in the soil as resistance will overlap. So because of they are very closely spaced, तो उनकी वजह से उनके क्या होगा, soil pressure develop होगा in the soil as a resistance. और तो सॉइल प्रेशर जो डेवलप होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसके बेरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट. द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल मे और मे नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल कंसिस्टिंग ए ग्रुप. सो फॉर एग्जांपल, फ्रिक्शन पाइल, in a friction pile which is formed in the clay, the bearing capacity of the sum of all individual piles are less than the product of the friction bearing value QUP of an individual pile multiplied by the number of n piles. If we provide just like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piles, we provide the 9 piles. So the summation of bearing capacity of 9 piles is not it is less than the product of n QUP. Okay, so this is case of a friction pile. So the summation of one pile, the bearing capacity of one pile multiplied by the number of pile. If we provide 9 piles, then we multiply it by 9. तो एक पाइल का जितनी बेरिंग कैपेसिटी होगा उसका जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे नंबर ऑफ पाइल से, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, समेशन ऑफ ऑल पाइल्स. जो एक्चुअल में जो बेरिंग कैपेसिटी होगी अलग अलग इंडिविजुअल पाइल की जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जो समेशन होगा वो हमेशा कम होगा. ये एफिशिएंसी के ऊपर, ये इसकी एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ा इन द केस ऑफ फ्रिक्शन पाइल. सेकेंड, एंड बेरिंग पाइल्स. So in the end bearing pile there is the same value. So QUP is equals QUP multiplied by n is equals to summation of QUP. Okay, in the end bearing piles. Third case, when the combined bearing piles and friction piles are together. So if there is a group in which we used bearing piles and friction piles both, तो क्या होगा उसकी वजह से, जो एंड बेयरिंग पाइल्स के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन पाइल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. तो ओनली द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्रिक्शनल पाइल्स पोर्शन इज़ रिड्यूस. तो जो फ्रिक्शनल पाइल पोर्शन जो है, मतलब जितनी फ्रिक्शन पाइल हमने यूज़ की है उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी. तो इसके लिए एक मेथड भी है, ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रिक्शनल पाइल इज़ टू मल्टीप्लाई बाय द रिडक्शन फैक्टर.
मल्टीप्लाई बाय द रिडक्शन फैक्टर, और रिडक्शन फैक्टर को हमने शो किया है किससे, नीटा जी से। सो क्यू यू जी क्या है, क्यू यू जी है पूरे ग्रुप की बेयरिंग कैपेसिटी। टोटल अगर जितनी नंबर ऑफ पाइल्स हमने प्रोवाइड कराई है उसकी टोटल ग्रुप की कितनी बेयरिंग कैपेसिटी को उसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू यू जी से। एन नंबर ऑफ पाइल, क्यू यू पी क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल पाइल की बेयरिंग कैपेसिटी, और नीटा जी क्या होता है, एक रिडक्शन फैक्टर होता है। तो एक रिडक्शन फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, पूरे ग्रुप की जो बेयरिंग कैपेसिटी है उसकी वैल्यू मिलेगी। दिस क्यू यू जी इज़ द लोड कैरिड कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रिक्शन पाइल, एंड क्यू यू पी क्या होगी, किसी एक पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी। एन नंबर ऑफ पाइल, एंड नीटा जी एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप, या रिडक्शन फैक्टर भी हम इसको कहते हैं। और इस रिडक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रिडक्शन फैक्टर डिपेंड करता है कि पाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पाइल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी विड्थ भी होगी, तो विड्थ कितनी है, डायमीटर कितना है, मटेरियल कितना है, मटेरियल कैसा है, कौन से मटेरियल की पाइल बनी है, या स्टील है, कंक्रीट है, टिम्बर है, डिपेंड अपॉन देयर characteristics. Second, spacing of pile. This is also a important factor in the group of piles, कि हम पाइल्स के बीच में स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे भी उसकी एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। थर्ड इज टोटल नंबर ऑफ पाइल्स इन ए रो एंड ए नंबर ऑफ पाइल्स इन ए रो। तो हमने टोटल जैसे एक अगर हमने ये इस तरह से हमने एक ग्रुप ऑफ पाइल इस तरह से यूज़ करी है, तो टोटल हमने कितनी रो प्रोवाइड करे ये उस पर भी डिपेंड करता था। हमने यहाँ कितनी रो प्रोवाइड कराई है, 1, 2 एंड 3। उसके अलावा और क्या डिपेंड करता है कि एक रो के अंदर आपने कितनी पाइल प्रोवाइड कराई है। तो एक रो में यहाँ पे हमने 3 पाइल प्रोवाइड कराई, अगर हम 4 पाइल प्रोवाइड करा देते तो उस नीटा जी की वैल्यू चेंज हो जाती। तो इसके हिसाब से भी क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है रिडक्शन फैक्टर के ऊपर। ठीक है, अब रिडक्शन फैक्टर को फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। एक कन्वर्स लेबल्स फार्मूला है जिसमें नीटा जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 माइनस थीटा अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 इंटू एम प्लस m माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाय m बाय n। तो यहाँ पे m क्या है, m है नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़। जैसे यहाँ पे आप इस फिगर को देख लीजिए एग्जांपल के लिए, यहाँ पे टोटल 9 पाइल है। ठीक है, तो इस फिगर में नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ पाइल्स इन ईच रो, तो एक रो के अंदर हम कितनी पाइल प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस फिगर के हिसाब से हम एक रो के अंदर कितनी पाइल प्रोवाइड करा रहे हैं, 3 प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू भी 3 हो गई, तो हमको m और n की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट क्या है, थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स d बाई एस, tan इनवर्स d बाई एस। और d क्या होता है, डाया ऑफ पाइल, और s क्या होती है, स्पेसिंग ऑफ पाइल। हमको पर पाइल का डाया मालूम होगा, और इस पाइल के बीच में कितनी स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर वो भी हमको मालूम होगी। तो इन सब की वैल्यू पुट करके हम नीटा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं रिडक्शन फैक्टर की। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, वो है सेलर-केनी फार्मूला। उसमें भी है 1 माइनस 0.479 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 0.093 इंटू एम प्लस एन माइनस 2 अपॉन एम प्लस एन माइनस 1 प्लस 0.3 अपॉन एम प्लस एन। तो एम और एन की क्या होते हैं, एम और एन वही होते हैं नंबर ऑफ रोज़, और एक रो के अंदर कितनी फाइल्स हमने प्रोवाइड करे वो क्या होती है, एन। अब एस क्या होता है, एस होता है एवरेज स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर इन मीटर। किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, मीटर के अंदर एवरेज स्पेसिंग, मतलब पाइल के बीच में हमने कितनी स्पेस प्रोवाइड कराई एक पूरे ग्रुप के अंदर, उसका एवरेज, और वैल्यू किस में होगी, मीटर में। तो इस तरह से 2 फार्मूलास हम किसका, रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक फेल्ड रूल भी है। फेल्ड रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वैल्यू ऑफ ईच पाइल इज रिड्यूस बाय 116 ऑन अकाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द नियरेस्ट पाइल इन ईच डायगोनल और स्ट्रेट रो और विच द पाइल इन क्वेश्चन इन इज ए मेंबर। सो इफ अगर हमारा जो ग्रुप है वो 2 पाइल का है, ठीक है, जैसे ये 2 पाइल का ग्रुप है, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसने कुछ अपनी फील्ड वैल्यू दे रखी है 15/16 से। अगर अपने वैल्यू कितनी है, 100 है, कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रुप की कितनी हो जाएगी, 15/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी आ जाएगी,
93.5 आ जाएगी। इसी तरह से 3 के लिए क्वेश्चन है, यही तरीका है। 3 के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 14/6, एक एक कम करती जाएगी। जैसे बात 2 के लिए था 15/16, 3 के लिए हो जाएगा 14/16। इस बार 100 का मल्टीप्लाई, अब एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 100 है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो उसको मुझको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 3 पाइल का ग्रुप है तो 14/16 से, तो 87.5% आ जाएगा। तो जितनी होनी चाहिए थी 3 पाइल्स की, उसका कितना हो गया समेशन का, 87.5%। इसी तरह से 4 पाइल के लिए भी एक रूल दिया है, जैसे जैसे पाइल बढ़ती जाएगी वैसे जैसे ऊपर वैल्यू में 1 कम होता जाएगा। अब 13/16, वैसे 5 पाइल होगी तो 4 पाइल के लिए तो हम लेंगे 13/16 और 1 पाइल के लिए हम क्या लेंगे 12/16, एक कम करते जाइए। ठीक है, 4 पाइल के लिए यहाँ पे दे रखा है 13/16, तो हम 4 पाइल के लिए क्या लेंगे 13/16, और 1 पाइल के लिए क्या लेंगे उससे एक कम और हो जाइए 12/16। 6 पाइल के लिए तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 के अंदर, 4 और 2 के अंदर। 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए सेम 13/16, और जो रिमेनिंग 2 पाइल हो जाएगी उसके लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 12 था तो अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 11। इसी तरह से 9 पाइल का जो केस है उसके अंदर भी ऐसे होगा, 4 4 और 1 के अंदर डिवाइड करेंगे। 4 के लिए 13/16, फिर 4 के लिए नेक्स्ट 11/16, और लास्ट 1 पाइल जो एक्स्ट्रा बची उसके लिए 8/16, तो टोटल कितना आ जाएगा 72.2%। तो ये कुछ 3 रूल्स थे डिटरमाइनिंग ऑफ द रिडक्शन फैक्टर। नेक्स्ट जो होता है ग्रुप की वजह से इफेक्ट होता है, वो क्या होता है डिज़ाइन ऑफ ए पाइल ग्रुप। उसके अंदर हम निकालेंगे उसकी बेयरिंग कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पाइल इन ए क्ले इज मेनली ड्यू टू द फ्रिक्शनल एंड द पॉइंट बेयरिंग रेजिस्टेंस में भी नेग्लिजिबल। तो जब हम एक पाइल ग्रुप की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर कोई पाइल है वो कैसी है क्ले के अंदर है, ठीक है, और वो कौन सी है फ्रिक्शन पाइल है, तो एंड द पॉइंट बेयरिंग रेजिस्टेंस में भी नेग्लिजिबल। तो पॉइंट बेयरिंग रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। हमने स्टैटिक फार्मूला पढ़ा था, क्या था स्टैटिक फार्मूला, QUP इज इक्वल्स टू क्या था RF प्लस RP था, ठीक है। तो RF और RP की हम वैल्यू निकालते हैं उससे फार्मूला से। तो RF और RP की वैल्यू से इसमें क्या होता है, ये बियरिंग रेजिस्टेंस होता है। RF तो क्या होता है टोटल अल्टीमेट पॉइंट स्क्रीन फ्रिक्शन, अल्टीमेट स्क्रीन फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं RF से, ठीक है, और RP को किससे डिनोट करते हैं बियरिंग रेजिस्टेंस से। ये तो होता है स्क्रीन फ्रिक्शन और ये होता है बियरिंग रेजिस्टेंस। तो अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जब फ्रिक्शनल पाइल क्ले के होंगे तो हम पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस को जीरो मान लेंगे। तो इस पूरी टर्म को हम क्या मान सकते हैं, ज़ीरो मान सकते हैं। तो सिर्फ QUP की वैल्यू किसके इक्वल होगी, RF के बराबर होगी, ठीक है। इन ए पाइल ग्रुप द पाइल आर कनेक्टेड एट इट्स टॉप बाय ए पाइल कैप। तो एक पाइल ग्रुप के अंदर क्या होता है, जब सभी पाइल जो होती है वो उनका टॉप से वो कनेक्ट होती है एक पाइल कैप से। हैज़ द फेलियर ऑफ ए पाइल ग्रुप इज़ लाइकली टू अकर एट ए लोड विच मे बी स्मॉलर देन द अल्टीमेट लोड कैरिड बाय ईच पाइल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पाइल। जो कि हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं फर्स्ट में ही यहाँ पे कि क्या होगी QUP इंटू N की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी समेशन ऑफ QUP से। तो वही यहाँ पे कहना चाहता है कि जो कि लोड जो होगा जिसके ऊपर ये फेल होगी वो क्या होगी इंडिविजुअल पाइल के समेशन वैल्यू से कम लोड पे ही क्या होगा ग्रुप फेल हो सकता है, ठीक है। द एरिया ऑफ ए पाइल ग्रुप अलॉन्ग फेलियर सरफेस इज ए नंबर ऑफ पाइल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द पैरामीटर P ऑफ ए पाइल मल्टीप्लाई बाय द लेंथ एंड ऑफ द पाइल, ठीक है। तो QUG का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, QUG क्या होता है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप, उसका फॉर्मूला क्या है P इंटू L इंटू RF प्लस A इंटू RP। P क्या होता है पैरामीटर, जैसे ये पाइल है तो ये इसकी सही, ये क्या हो गई इसकी पैरामीटर परिधि, ठीक है। L क्या है लेंथ कितनी है पाइल की, RF हमने पढ़ा था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, हम डायनामिक फार्मूला पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। उसमें क्या था QP इज इक्वल्स टू क्या था RF प्लस RP था। RF को हम क्या लिख सकते थे, RF को हम लिख सकते थे M इंटू C डैश, और RP को क्या लिख सकते थे, RP को हम लिख सकते थे M इंटू C डैश इंटू इसका एरिया, और इसको RP को क्या लिख सकते थे
आरपी को लिख सकते थे हम 9 इंटू सी इंटू टिप का एरिया। ओके, ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला था। तो जो वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ आया है। तो ए क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए पाइल, जो यहाँ पे ए जो आ रहा है, और आरपी क्या है, आरपी है यूनिट पॉइंट और टो रेजिस्टेंस, टो की वजह से कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम लेते हैं फिगर 16.6। तो ये रहा फिगर 16.6। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइल कितना होगा, तो ये ग्रुप की हम बात करेंगे। तो ये ग्रुप फॉर्म हुआ 3 पाइल का, तो ये कितनी है, बी इतनी इसकी विड्थ हो गई। तो एरिया क्या हो गया, बी बाई बी, बी का स्क्वायर। और पैरामीटर ऑफ पाइल ग्रुप कितना हो जाएगा, तो जिसकी एक साइड हो गई बी, बी, बी एंड बी, तो पैरामीटर क्या हो गया 4b। आर क्या होता है, शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर हमको सी डैश की और सी पी की वैल्यू ना मिले तो हम उसको किसके बराबर मान सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सी डैश और सी पी की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कितनी हो सकती है, क्यू यू बाय 2। ठीक है, तो आर एफ की वैल्यू हम कैसे निकाल सकेंगे, क्यू यू बाय 2। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो क्यू यू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की जगह आ गया 4bl और 4b, और एल की जगह एल है, आर एफ की जगह आर एफ है, प्लस ए की जगह बी का स्क्वायर और आर पी की जगह आर पी। ठीक है, और आर पी की वैल्यू क्या होती है, आर पी की वैल्यू होती है 9 ऑफ सी पी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आर पी क्या होता है, यूनिट पॉइंट और टू रेजिस्टेंस। तो 9 सी पी को यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे ग्रुप ऑफ फाइल का क्या हो गया, बेरिंग कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सेम लाइन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डेटा सी एंड सी पी की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, क्यू यू बाई 2। क्यू यू क्या होती है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए पाइल, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू यू से। ठीक है, नेक्स्ट, इफ हाउ एवर द पाइल इन द ग्रुप आर सो स्पेस्ड दैट दे एक्ट एज इंडिविजुअली रेदर देन एक्टिंग इन अ ग्रुप, द टोटल लोड कैपेसिटी ऑफ एन पाइल इज़ गिवन बाय क्यू यू एन इंटू एन क्यू पी। तो अगर क्या होगा कि पाइल के ग्रुप जो है, पाइल का ग्रुप है, उनके स्पेसिंग कुछ इस तरह से कर रखी है कि हर पाइल कैसे एक्ट कर रही है, इंडिविजुअली। तो ग्रुप ऑफ पाइल की वैल्यू हम ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, क्यू यू जी की वैल्यू। तो कैसे निकाल देंगे, जितनी नंबर ऑफ पाइल है उससे एक इंडिविजुअल पाइल की कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर वो इंडिविजुअली काम कर रही है तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद परमिशिबल लोड कितना होगा, परमिशिबल लोड होगा जो यहाँ से क्यू यू की वैल्यू निकल जाएगी, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आगे हम एग्जांपल में भी देखेंगे 26.2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, सेटलमेंट निकालना, सेटलमेंट इन ए पाइल ग्रुप और क्ले। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमको सेटलमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब अगर एक ग्रुप की तरह पाइल एक्ट करेगी तो कितना अमाउंट ऑफ सेटलमेंट होगा उसके अंदर, उसको फाइंड आउट करना है। तो एज ए रफ अप्रॉक्सीमेशन द सेटलमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए फ्रिक्शनल पाइल, ओके, कैन बी computed on the assumption that clay contained between the top of the pile and their lower third point is incompressible and that the load is applied to the soil at this lower third point of the pile। तो आप समझिएगा कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है, अगर आप ये फिगर देख रहे हैं तो इस फिगर के हिसाब से ये कहना चाहता है कि जैसे ये है ग्राउंड सरफेस, ये आपको दिख रही है, ये है ग्राउंड सरफेस। तो ग्राउंड की सरफेस से उस पाइल की 2/3 लेंथ तक, कितनी, ये देखो, ये पाइल की 2/3 लेंथ तक, ये पूरे एरिया क्या कहला है, इस पूरे एरिया जो है पाइल का वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। इस मतलब इस पर कंप्रेशन नहीं लग रहा। तो सिर्फ जो लोड जो लग रहा है, वो जो लोड जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, उसकी लोअर 1/3 लेंथ से। तो टोटल अगर इसकी लेंथ होगी L तो इसकी 2/3 L लेंथ तक तो किसी भी तरह का कोई प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। इसका प्रेशर कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी 1/3 लेंथ तक, मतलब L/3 लेंथ तक। ठीक है, वो भी बॉटम से। ये कहना चाहता है सेटलमेंट के अंदर, किसके अंदर, फ्रिक्शन पाइल के अंदर। और नेक्स्ट क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ पाइल बिलो दिस लेवल इज इग्नोर्ड, द लोड इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस लेवल एंड इट इज एज्यूम टू बी स्प्रेड एट द एंगल ऑफ 30। अब जो यहाँ से जो लोड निकल रहा है
ठीक है, जो नीचे की सरफेस के ऊपर जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देख लीजिए ये यूडीएल लगा हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड। तो लोड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी लोअर 1/3 लेंथ से, और ऊपर की 2/3 लेंथ कैसी है, इनकम्प्रेसिबल है। ग्राउंड सरफेस से उसकी 2/3 लेंथ तक कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल। और जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो कहाँ से होता है, उसकी L/3 लेंथ से, लोअर वाली L/3 लेंथ से, ठीक है। द सेटलमेंट ऑफ ईच लेयर एंड इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक फार्मूला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सेटलमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला है। इसको डिनोट किया है सेटलमेंट को रो से। तो रो कितना होना चाहिए, वो उसका फार्मूला है H/cc। H क्या है, थिकनेस ऑफ ईच लेयर, ठीक है। तो अब इसके लोअर थर्ड पार्ट से अब ये नीचे की तरफ लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसकी थिकनेस कितनी है इस लेयर की, ठीक है। जहाँ पर ये लोड ट्रांसफ़र होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल H से, ठीक है। और cc एक फार्मूला है, cc का फार्मूला है, आप फाइंड लिख सकते हैं। cc कैसे निकालना है, cc का फार्मूला होता है 0.009 मल्टीप्लाई WL माइनस 10। ये फार्मूला आप लिख लीजिए cc का। WL क्या है, WL होती है लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, ठीक है। WL क्या है, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो उससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cc की वैल्यू, ठीक है। अपॉन 1 + E0। E0 क्या है, इनिशियल वॉइड रेशियो, जब इनिशियल स्टेज में वॉइड रेशियो क्या था लोड लगने से पहले, इनटू log 10 सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट। और सिग्मा नॉट और डेल्टा सिग्मा क्या है, तो सिग्मा नॉट तो क्या है, इनिशियल स्ट्रेस एट ए सेंटर, और इसको हम क्या है, एट सेंटर ऑफ द लेयर। इसको कैसे निकाल सकते हैं, गामा जेड से। गामा क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और जेड क्या होती है, डेप्थ, कितनी डेप्थ पे लग रहा है, डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द लेयर, ठीक है। सिग्मा डैश एडिशनल स्ट्रेस ड्यू टू पाइल, और सिग्मा पी क्या होता है, सिग्मा पी भी होता है स्ट्रेसेस एट ईच पॉइंट लेयर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से अच्छे से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला का वो उठा लीजिए, ठीक है। अब आपको ज़्यादा समझना है तो आप कौन सा एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 26.6, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जांपल 26.6। दिस इज़ एग्जांपल। तो ये कुछ इस तरह से आपको डायग्राम मिला हुआ है। फॉर द डिज़ाइन डेटा 26.6 में आपको 26.5 का जो डेटा है वही लेना है, ठीक है। तो आप लोड वगैरह ये सब ले सकते हैं, ठीक है। और लेयर की कितनी है, 20 मीटर की डेप्थ है, ठीक है। एवरेज कन्फाइंड QU की वैल्यू कितनी है, QU की वैल्यू है 70, ठीक है। तो आपको ये सब डेटा लेना है और उसके हिसाब से ये डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जो टोटल लोड एक्ट टू द इट्स 2/3 लेंथ, तो आपको टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ से आप फिगर में देख लीजिए, ये आपकी पाइल है, ठीक है। यहाँ से लेके इस पाइल की पूरी लेंथ कितनी दे रखी है, 10.5, ओके। तो इसकी 2/3 लेंथ कितनी होगी, जो इनकम्प्रेसिबल होगी, तो 2/3 लेंथ कितनी होगी, 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ 7 मीटर तक की लेंथ तक का तो इनकम्प्रेसिबल होगा। तो अब नीचे कितनी लेंथ बच गई, 10.5 माइनस 7 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3.5। तो ये फर्स्ट कितनी आ गई, 3.5, जो इसका लोअर थर्ड पार्ट है उसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस फिगर के अंदर क्या है, 3 लेयर है। पहली लेयर की थिकनेस कितनी है, H1 4 मीटर, सेकंड H2 भी कितनी है 4 मीटर, और थर्ड लेयर कितनी है H3 भी 5 मीटर है। तो आपको अलग अलग तीनों लेयर के अंदर सेटलमेंट को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद तीनों सेटलमेंट को हम समेशन कर देंगे तो आपको टोटल सेटलमेंट मिल जाएगा। तो लेते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। तो एज्यूम दिस डेप्थ बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, ठीक है। सो
फॉर्मूला क्या था हमारा सेटलमेंट फर्स्ट लेयर का निकालना है, तो ρ1 इजिकल्स टू H1 इंटू सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट। ठीक है, H1 की वैल्यू कितनी हो गई, H1 की वैल्यू हमको कौन यहाँ दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, सी सी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। ठीक है, आपको उसमें सी सी के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिएगी, लिक्विड लिमिट की। ठीक है, तो 26.5 में आपको लिक्विड लिमिट दे रखी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 60%। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस लिक्विड लिमिट को रखा 60 माइनस 100, तो आपके पास कितनी वैल्यू हो गई 0.45, किसकी वैल्यू हो गई सी सी की। ठीक है, इनिशियल वॉइड रेशियो आपको नहीं दे रखा, तो आप इसको कितना मान के चल सकते हैं, 1 मान के चल सकते हैं। अब निकालने हमको किसकी वैल्यू है, अब हमको पहले वैल्यू निकालनी है सिग्मा नॉट और डेल्टा सिग्मा की। तो सिग्मा नॉट का फॉर्मूला हमको क्या होता है, गामा इंटू जेड। गामा क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल, और जेड क्या होती है, जेड होते हैं डेप्थ, कितनी डेप्थ वो लग रहा है, उसके ऊपर की डेप्थ, हर लेयर के ऊपर जो कितना ओवरबर्डन प्रेशर आ रहा है, कि उसकी ओवरबर्डन लेयर की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, गामा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी Z1 कैसे होगा, जैसे ये लेयर है Z1, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है H1, तो जो इसके मिड पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं Z की वैल्यू निकालने के लिए, तो 4 मीटर का मिड पॉइंट कितने पर होगा 2 मीटर पर, और इसके ऊपर टोटल कितनी हाइट है 7 मीटर, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। तो Z1 की वैल्यू कितनी आ गई, मिड पॉइंट से उसके ऊपर तक की लेंथ। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू आ गई 7 + 2 9 इंटू मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपको सिग्मा नॉट मिल गया। इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर कितना है 144। ओके, नेक्स्ट क्या निकालते हैं, अब हमको नेक्स्ट निकालना है डेल्टा ऑफ सिग्मा। डेल्टा ऑफ सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एरिया एट द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट लेयर। तो आपको Q अपॉन एरिया एट द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट लेयर से आपको किसका वैल्यू निकल जाएगी डेल्टा सिग्मा की। तो सबसे पहले एरिया निकालना है, तो ये आपकी फर्स्ट लेयर है। ठीक है, इसका एरिया कैसा होगा बी तो आपको देख सकते हैं बी कितनी है, विड्थ है पाई की, बी प्लस 2 इंटू H1 अपॉन 2 इंटू 1030। अब देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपके कैसे बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालता है 1/2 लेंथ इंटू हाइट 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री एंगल बन रहा था, इसके सामने क्या होगा ऊंचाई, और ये है आधार। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो अब दो ट्राइंगल है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1/2, और ये आधार कितना है, आधार यहाँ पे आपको देख सकते हैं कितनी है, H1 की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर। अगर आप इस ट्राइंगल को कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गई लंब, और ये क्या हुआ आधार। आधार की वैल्यू कितनी है H1 के बराबर है, डायग्राम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, और इसके सामने वाली L की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, L बराबर क्या होगा एंगल 1030। ठीक है, तो 1/2 H1 इंटू 1030, तो ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, प्लस B कर दिया, तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया, इस पूरे सेक्शन का एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, B प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, H1 1030 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे हम निकाल देंगे डेल्टा डैश, इसका वैल्यू कैसा है Q अपॉन एरिया। Q आपको 3000 क्वेश्चन में दे रखा है, जो 26.5 का आपको डेटा लेना है, तो Q कितना है, कैरी लोड 3000 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई डेल्टा डैश की। तो अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ गई है, तो हम फर्स्ट लेयर का सेटलमेंट निकाल देंगे। P1 = सभी वैल्यू पुट कर दी,
तो हमारे पास फर्स्ट लेयर का सेटलमेंट कितना आ गया 12.9। इसी तरह से सेकंड लेयर में जाएंगे तो ये सेकंड लेयर में बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी। अब क्या चेंज होगा, सिग्मा नॉट की वैल्यू क्या थी, गामा इंटू Z1। अब इस फर्स्ट लेयर में Z1 था, सेकंड लेयर में क्या होगा Z2। तो अब इसका मिड पॉइंट क्या है, ये रहा। इस लेयर की थिकनेस कितनी है 4 मीटर, तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा 2 के ऊपर कितनी हाइट है 4 + 7। तो अब 2 + 4 + 7, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट आ जाएगी। तो अब टोटल कितनी हो गई 13, ठीक है, इंटू 16। तो अभी सिग्मा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 208। इसी तरह से सेम तरीके से हम जैसे यहाँ से हमने एरिया निकाला था वैसे यहाँ से एरिया निकालेंगे और हम इसी तरह से सिग्मा नॉट डेल्टा सिग्मा की वैल्यू भी निकाल देंगे और इसी सब वैल्यू पुट करके P2 निकाल देंगे। इसी तरह से Z3 में जाएंगे तो Z3 में अब ये रहा इसका मिड पॉइंट। टोटल इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, तो इसका मिड पॉइंट कितना पे होगा, इसका मिड पॉइंट होगा 2.5 पे। तो 2.5 प्लस ऊपर की लेयर की थिकनेस 4, उसके ऊपर की लेयर की थिकनेस और 4 और सबसे ऊपर 7। तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी 7 + 11 15 और 15 + 17.5। तो Z3 की वैल्यू कितनी आ गई 17.5 इंटू 16। तो Z सिग्मा नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से एरिया एट द मिड पॉइंट निकालना है तो अब इस बार इस वाले का एरिया निकालेंगे। सेम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, बस क्या होगा H1 की जगह क्या आ जाएगा, इस बार H3 आ जाएगा। यहाँ पे H1 की जगह क्या आता है H2 आता है, ठीक है। H1 H2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो H1 की वैल्यू कितनी आएगी, H1 और H2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे कुछ इसी तरह से, सेम टू सेम फार्मूला होगा। और ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा उनके मिड पॉइंट पे लेंगे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लेयर थी इसलिए यहाँ पे 4 मीटर लिया, सेकंड लेयर हमेशा मिड पे लेंगे तो यहाँ पे 4 + 2 6 लेंगे, ठीक है, 6 यहाँ पुट करा है। और इसी तरह थर्ड लेयर में चलेंगे तो 4 + 4 8 प्लस इसका हाफ 2.5, तो यहाँ पे 10.5 वैल्यू ली है, ठीक है। इसी तरह से तीनों वैल्यूज़ का तीनों सेटलमेंट आ जाएगा। टोटल सेटलमेंट P1 + P2 + P3। तो हमारे पास टोटल सेटलमेंट इस पूरी फाउंडेशन का इस तरह से आ गया। तो इस तरह से हम सेटलमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, नेगेटिव फ्रिक्शन। नेगेटिव फ्रिक्शन क्या होता है, नेगेटिव फ्रिक्शन होता है कि जब नेगेटिव फ्रिक्शन क्या होता है, एक डाउनवर्ड ड्रैग एक्शन होता है वह ऑन ए पाइल ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग कंप्रेसिबल सॉइल। क्या होगा, जैसे अगर आपने पाइल को किसी अर्थ के अंदर डाला तो उसके जो आसपास की सराउंडिंग सॉइल है उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि इस पाइल को कैसे करेगा, नीचे की ओर ड्रैग करेगा। इसी को नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन इज ए डाउनवर्ड ड्रैग एक्शन ऑन ए पाइल ड्यू टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग कंप्रेसिबल सॉइल रिलेटिव टू द पाइल। सो ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये 2 पाइल हैं, इसके आसपास कैसी सॉइल है, कंप्रेसिबल सॉइल है और लूज सॉइल है। दिस इज हैपन व्हेन द सराउंडिंग कंप्रेसिबल सॉइल हैज़ बीन रिसेंटली फिल्ड और फॉर्म। आपने फाउंडेशन को फॉर्म किया और उसके बाद आपने क्या हुआ, आसपास सैंड की फिलिंग कर दी। तो सैंड की फिलिंग कैसी होगी, लूज कंडीशन में रहेगी, तो उस वजह से क्या होगा, कंप्रेसिबल होगी वो और कंप्रेस होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्क्रीन फ्रिक्शन फोर्स डेवलप करेगी पाइल की फेस के ऊपर। सो द नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन में ऑल्सो भी डेवलप्ड बाय लोअरिंग द ग्राउंड वाटर। इसके अलावा भी नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन किससे हो सकता है, ग्राउंड वाटर का लेवल जब कम हो जाए या लोअर हो जाए तो उसकी वजह से भी पाइल्स के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है। द इंक्रीज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस कॉजिंग द कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल विद द रिजल्टेंट सेटलिंग एंड फ्रिक्शन फोर्स बीइंग डेवलप्ड ऑन द पाइल, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, दिस हैपन्स व्हेन एज ए सॉइल कंसोलिडेटेड द अर्थ फील्स मूव डाउनवर्ड एंड डेवलपिंग स्क्रीन फोर्स ऑन द पैरामीटर ऑफ द पाइल विच टेंड टू कैरी द पाइल फार्दर इनटू द ग्राउंड। तो क्या होगा, जब ये स्क्रीन फ्रिक्शन फोर्स पाइल के ऊपर लगेगा तो ये क्या करेगा, इस पाइल को नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन। इसका 2 फार्मूला है। फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए क्या होता है, पैरामीटर इंटू C इंटू लेंथ LF, ठीक है। और ग्रेनुअल सॉइल के लिए 1/2
एल एफ का स्क्वायर इंटू पैरामीटर इंटू गामा इंटू के इंटू एफ। तो एल एफ क्या होता है, डेप्थ ऑफ फिलिंग, सी कोहेजन ऑफ द सॉइल, पी पैरामीटर ऑफ द पाइल, के अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट से ज़्यादा होती है और पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट से कम होती है, गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, एंड एफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 10 फाई से। फाई हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरह से हम नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन क्या से निकाल सकते हैं ऑन ए पाइल विद द हेल्प ऑफ these two formulas. Okay. We take an example. So in a 16 पाइल ग्रुप, मतलब 16 पाइल का एक ग्रुप है। द पाइल डायमीटर कितना है, डी की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है 1.5 मीटर। तो ये सब डेटा हम ले लेंगे। डी की वैल्यू है 45, ठीक है, और स्पेसिंग कितनी है, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। ओके, ठीक है। उसके अलावा कंडीशन क्या रखे, डिटरमाइन द वेदर द फेलियर वुड अकर विद द पाइल एक्टिंग इंडिविजुअली और एज ए ग्रुप। तो आपको इंडिविजुअली और एज ए ग्रुप कितनी उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी QUG की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर उसने क्या कंडीशन दे रखी है, नेगलेक्ट करना हमको बियरिंग एट द टिप। तो एट द टिप बियरिंग कितना है उसको हमको नेगलेक्ट करना है। एंड द ऑल पाइल्स आर 10 मीटर लॉन्ग एंड टेक एन की वैल्यू कितने दे रखी है 0.7, ठीक है। तो ये हमारे सब वैल्यूज हमको दे रखी हैं। तो विड्थ ऑफ द ग्रुप कितना हो जाएगा, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। और क्या होगा 16 पाइल का ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, हम 16 पाइल का ग्रुप है तो विड्थ ऑफ द ग्रुप कितने आ जाएगा 150 इंटू 3 प्लस 45। तो विड्थ ऑफ द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ गई 495 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.95 मीटर। तो अभी ग्रुप के लिए हमको निकालना, तो QUG की वैल्यू क्या होती है, तो QUG का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। क्या था, RF प्लस RP था, सबसे स्टैटिक फार्मूला था, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या लेना है, नेगलेक्ट करने के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखी है बीयरिंग की वैल्यू। तो हमारे पास सिर्फ क्या मिल जाएगा RF बच जाएगा। RF की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है RF का फार्मूला क्या होता है C इंटू पैरामीटर इंटू लेंथ, ठीक है। तो C कितना निकल गया, C इंटू पैरामीटर कितना था 4 इंटू भी हो जाएगा और लेंथ L, तो 15 इंटू 4 इंटू B की वैल्यू अभी हमने निकाली 4.95 और लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है 10 मीटर। तो आपको एक ग्रुप का वैल्यू निकल गई। अब आपको निकालना है इंडिविजुअली निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फार्मूला Q इक्वल्स टू N इंटू QUP। तो RF को ही कंसिडर करना है। RF का फॉर्मूला क्या होता है, RF का फॉर्मूला होता है M इंटू C इंटू AP, ठीक है। M आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.7, C कैसे निकालेंगे, C भी आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 4. C की वैल्यू देखिए 10, ठीक। तो इस तरह से आपको सब वैल्यू पुट करके आप किसकी वैल्यू निकाले, और एरिया AP कैसे निकाला, पाई इंटू DL। तो आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो पाई इंटू D इंटू L से हमको एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू सब पुट करके QUG की इंडिविजुअली भी निकल जाएगा। तो विच इज़ लेस देन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्शन एंड द फाउंडेशन विल फेल बाय द पाइल्स एक्टिंग इंडिविजुअली। तो जो वैल्यू कम होगी उसके अंदर पाइल क्या होगी, फेल होगी, ठीक है। एंड द लोड फेलियर वुड बी 7917। तो कितने लोड के ऊपर फेल हो जाएगा 7917। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम करेंगे।